Hi everyone, welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. Let's get started with the Malta time frame analysis for Bank Nifty and Nifty. So starting from Nifty, so what I've done, I've just marked all the red candles on the monthly time frame. So right now, whatever we are checking, it's on monthly time frame. So far we are on the fifth down month, red month in a row, and it's consecutive back-to-back red candles. Now for this month to come to an end, we still have one more entire week to go because Friday 28th is on a 28th of Feb is on a Friday. So one more week to go. But as of now, it looks red candle in a row. So what we have done, I have just gone and checked whenever there were 4 candles in red or more, when was that time and what was the fall. So in this case, currently we are from the top, we are somewhere around 13.5% down, and 4 months in a row. I mean, it is showing 5 because I have considered from the top, but actually it's 5 red candles in a row, but fifth we will come to know only by the end of February. Moving forward, here we can see there were 4 red candles in a row, 10% fall from the top. Here again 3 candles in a row, but this was a COVID fall, and from the top right till the bottom it was somewhere around 40%, but only if we consider somewhere till just a second, only if we consider somewhere on the closing basis, then it will roughly turn out to 30 to 31%. Okay, and here again 4 candles in a row, 11.7% fall from the top, 4 candles in a row, 18%, and post that every time there was a 4 red candle in a row, there was a green up move. Okay, this is what has happened historically. Okay, and I'll show you few more data. This was way back in 1994 and 1996. Now remember, India at that point of time was much different than what India it is right now. So at that point we have seen 5 candles in a row, especially in 96, again post which we saw some sort of an up move, and in this case there were actually 8 red bars in a row, and this is I'm talking about the monthly time frame. Okay, but as I said, this doesn't make any sense. But now first let's understand where are we going to head from here, right? According to me, there could be 3 possibilities. Usually there are only 2 possibilities, right? The one is up move, the other one is down move, and I will definitely tell you the third one. But of course these 2 possibilities are there, and we will discuss about the third one. There are 2 possibilities. Either market will make a fresh low and will try to touch this particular levels of election day lows, somewhere around this zone. Okay, this is the first possibility, and looks more like most of the time it looks like 21 200, 21 300 is the zone where it will try to come right now, looking at the overall scenarios. Because we'll go and check on the higher time, like the one time frame lower from monthly. Let's go to weekly time frame. On the weekly time frame, if you guys remember, we have drawn this particular channel, and there was a breakdown, and then it gave a retest, and again it is trying to come down. The first target is somewhere around 22,630, and the second one somewhere around 21,700. Anyways, that's like a weekly time frame. Now what has happened for this particular week? Now remember, first and foremost, this was some sort of a resistance zone on the weekly time frame. This is in the month of February, March, April 2024, and then we saw a strong breakout. So market is trying to come to this levels for the first time. So that's the reason, according to support and resistance on the weekly time frame, there seems to be some sort of a support here. This would be somewhere around 22,500, 550 zones till 22,800. This is a big zone on the weekly time frame. So according to support and resistance theory, we are expecting some sort of a pause or a support and bounce from this particular zone in the weekly time frame. Now let's understand what has happened for this particular week. So, but before that, let's understand what has happened in the past. There was a big fall, then a pause, another pause, again fall, pause, and this was again a pause. Not, I would not say more of a continuation, because a very small candle, then again a gap down, and then volatility played out, and now after a big fall, again we are seeing some sort of a pause candle. This happened, this pause candle, which we saw on Friday. And this is the first ever time where we fail to close about 22,800. Okay, now why 22,800 level is important? Now you would say it's just for 5 points away and all, but still we failed to close above this 22,800. Now let's go and understand the importance of 22,800 as well. On the daily time frame, there is a falling wedge pattern. A falling wedge pattern is when the price tapers off, and usually for a falling wedge pattern, if there is a breakout, and it usually moves for a good up move. So at least in case that happens, we can see somewhere around 25 200 kind of a zone.
we will see whether it, I mean, whenever this kind of a move happens, only then we can clearly say that there might be some sort of a breakout. But this is one pattern that is developing in Nifty on a daily time frame. Now let's first understand the importance of 22,800. So this was the time, this was the day since when we were seeing only continuous fall, and we actually saw 9 days of back-to-back red candles in daily, and thereafter there wasn't much movement. Like market was more or less going sideways, wherein it had taken a support of 22,700. Whenever it touched 22,700, it tried to bounce back and always ensured that it gave a closing about 22,800. Now you can go and check that individually each closing day. Okay, and this was the first ever day, which is Friday 21st of February, when it gave a closing below 22,800. So that's the reason 22,800 was very important for us. Now all these zones, 800 was tested several times, and now 700 is also tested twice. Okay, so either the market has to remain within this range and then give a breakout, else it might so do that this 700 will also be taken out, and somewhere around 550 500 to 600 zones it might take a support, and then it might try to come up. This is that third possibility that I was talking about. Either it will go up and go down. These are the two possibilities. The third possibility is it might first do a breakdown and then come all the way till 500 600 zones, then it might make a reversal. So this is the third possibility that I'm talking about. So we will go and understand why we are discussing this possibility as well. So this is the thing in daily. Now 15 minutes. Let's go and check. I just realized I have been talking continuously in English. So I will do a mix of both Hindi and English. So on the 15 minute, हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर? 15 minute में there are two things. Okay, before 15 minute, let's go to hourly. तो hourly में I'll just change the color पहले तो इसको. Hourly में if you can clearly see, ये particular trend line को market काफी बार respect कर रहा है. So this particular trend line has been tested quite some time. The moment there is a break of this trend line, you can draw this trend line on hourly, because hourly में बहुत cleanly दिख रहा है ये. तो जब भी ये break करेगा, that is when we can expect कि अब थोड़ा सा एक रिकवरी काइंड ऑफ अ फेस आ सकती है. ठीक है, अब हम चलते हैं 15 मिनट. वी वर ट्रैकिंग दिस पर्टिकुलर चैनल ऑन डेली एंड वी गॉट अ ब्रेकडाउन. इसका हमको फ्राइडे को ब्रेकडाउन मिला और उसके हिसाब से ये टारगेट कुछ 22,630 की बैठती है. ठीक है, तो अब हमने ये पूरा ही दिन, मतलब फ्राइडे को अब अगर आप देखोगे तो पूरा ही नीचे आया, और ये जो 800 का जोन मैं जो बता रही थी कि 800 काफ़ी दिनों तक ये मतलब होल्ड कर रहा था, इसने बिल्कुल भी 800 को ब्रेक किया और 700 के पास आके सपोर्ट लिया. फिर इसने थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट कर दी. ठीक है, जबकि मैं इसको एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रही थी कि मोस्ट लाइकली इट माइट डू दिस काइंड ऑफ अ पोल एंड अ फ्लैग, बट ये वापस रेंज के अंदर घुस गया. सो नाउ वी विल सी. नाउ इट्स मोर ऑफ अ बेरिश पोल एंड अ फ्लैग ही है, बट ऐसे काइंड ऑफ फ्लैग है, मतलब रेक्टेंगल टाइप का फ्लैग हो सकता है इसमें, ऐसा टाइप्स का, ये ऐसा टाइप का फ्लैग बन सकता है. अगर इसका ब्रेकडाउन आएगा तो हमें और डाउन मूव के लिए प्ले कर सकते हैं. तो राइट नाउ वी आर इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन यहाँ पर. ठीक है, तो अब हमारे लिए, जैसे हमने, अगर आपको यूएस मार्केट आपने अगर देखा होगा कि जो फ्राइडे नाइट को क्या हुआ है यूएस मार्केट में, तो इट्स ऑलमोस्ट डाउन बाय 750 पॉइंट्स. सो अब ऐसी बात है कि यूएस जब ऊपर भी जा रहा था तब वी वर नॉट रिएक्टिंग एज सच, मतलब बहुत ज़्यादा हमने कुछ उनके वजह से हमने कोई क्यूज लेके ऊपर नहीं गए थे. बट मार्केट इज़ ऑलरेडी इन अ नेगेटिव स्पीयर, और उस पर अगर और नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मोर और लेस इसको भी इफेक्ट करता है. और अगर आप जाकर देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो 22,600 के आसपास है एज पर फ्राइडे क्लोजिंग. तो अगर 22,600 मतलब ये जोन के आसपास है, और यहाँ पर मेरे लिए एक सपोर्ट की तरह दिख भी रहा है. हम देखते हैं हमें क्या करना है. So on a 15 minute time frame, what we have to do, if we open with the mega gap down as Gift Nifty is showing somewhere around 22,600 या 650, तो यहाँ पर पैनिक करके शॉर्ट ना कीजिएगा. What we have to do, I'll discuss. So we have to simply wait. ये पूरा पेशेंस का काम है, आपको वेट करना पड़ेगा. कितना टाइम वेट करना पड़ेगा? You would have to wait for 30 मिनट्स. 30 मिनट्स मतलब ये अब हम एक्चुअली 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिख रहा है, तो आपके 30 मिनट मतलब 15 मिनट के कैंडल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा. उसके हाई और लो को मार्क कर लो. जिस भी तरफ मार्केट निकलेगा वहां से फिर हम उस तरफ प्ले करने के लिए देखेंगे. हालांकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक शॉर्ट करने के लिए एक बाउंस आने की जरूरत है. अगर बाउंस नहीं आती है तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करोगे तो ये चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपकी एसएल हिट हो जाए.
इवन इफ यू वांट टू शॉर्ट, जस्ट एंश्योर दैट यू आर कीपिंग योर एसएल्स वेरी टाइटली, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर 600 के आसपास मार्केट ओपन हुआ और आपने शॉर्ट कर दिया और आपने 23,000 का एसएल लगा दिया, बिकॉज दैट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो शॉर्टिंग के टाइम पे थोड़ा सा, स्पेशली लोअर, अगर आप यहाँ पर खुल रहे हैं और यहाँ पर शॉर्ट करना है तो अलग चीज़ है। यहाँ पर जैसे 22,900 ओपन हो रहे हैं, तब आप 23,000 के एसएल के साथ प्ले कर सकते हो। बट इफ यू आर ओपनिंग एट 22,600, देन डोंट प्ले विद फार अवे एसएल्स। यहाँ पर हमें ये प्लान करना है कि 15 to 15 मिनट कैंडल के लिए वेट करेंगे, विच एवर साइड इट विल गो, वी विल ट्राई टू प्ले ऑन दैट साइड। नाउ रिमेंबर, ये यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी यहाँ का कोई लेवल दिखा रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट जरूर है, और हमने देखा है कि वीकली में 500 से 600 के जोन पे एक वीकली में एक सपोर्ट हुआ है, मतलब हुआ करता था। अगर आपने ओवरनाइट कॉल्स शॉर्ट किया होगा या मतलब बेरिश ट्रेड्स कैरी किए होंगे, तो देन डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू, बिकॉज फ्राइडे को मार्केट ने भी बेरिशनेस ही दिखाया। इनफैक्ट 7, जैसे मैंने कहा कि 800 को इतने टाइम से डिफेंड करा था और 800 के नीचे की क्लोजिंग दी, दैट इटसेल्फ थोड़ा बहुत क्यों वहां से ही मिलता है कि बेरिश ट्रेड्स कैरी करना चाहिए। तो दिस इज द प्लान फॉर निफ्टी। सिंपल है, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर निफ्टी में, इट्स बेसिकली नथिंग बट लोअर हाई लोअर लो काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स। आप 15 मिनट देख लो, आप आर्ली देख लो, राइट, ये लोअर हाई लोअर, ये सारा कुछ लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन ही चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, बेसिकली सेल ऑन राइस, बट सेल ऑन राइस है, सेल ऑन गैप डाउन ऐसा नहीं है। इसके लिए आई सेड कि वेट फॉर दैट 15 मिनट कैंडल टू ब्रेक इधर इट्स हाई और इट्स लो, और उसके बाद ही आप ट्रेड कीजिएगा। आप वीकली में भी डेली में भी जाओगे तो भी आपको लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन ही दिखेगी। अब यहाँ पर हमें जो, हमारे लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो यही है कि जो मतलब सब कुछ बेरिशनेस दिख रहा है मुझे, कोई भी टाइम फ्रेम अगर आप ओपन करोगे तो एवरीथिंग व्हाट आई कैन सी इज ओनली बेरिशनेस, देयर इज नो बुलिशनेस का इंडिकेशन एज ऑफ नाउ। और गिवन दिस फ्राइडे का जो फॉल है इन यूएस मार्केट, दैट ऑल्सो अगेन इज शोइंग कि मंडे गैप डाउन ओपनिंग होगी, अनलेस आई डोंट नो। एक और पॉजिटिव, अब पॉजिटिव्स क्या हो सकती है, पॉजिटिव्स में एक तो है आरबीआई की जो ऑपरेशन है फॉर यूएसडी आया है ना, उसका आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, कितना पॉजिटिवली इट इज गोइंग, ऑब्वियसली इट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर इंडियन मार्केट्स, बट उससे कितना इम्पैक्ट आएगा इसके सामने, दैट इवन आई डोंट नो। सो ओपनिंग जहां पर भी होगा, इसके लिए आई सेड कि लेट्स वेट इट आउट ऑन मंडे। बट अगेन वो गैप डाउन के लिए वो जो सेटअप है, उसके लिए गैप डाउन होना या बहुत बड़े गैप अप होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि फ्लैट ओपन हो तो आप 15 मिनट कैंडल्स के लिए वेट कीजिएगा। So that setup is only if we open on the basis of some huge gap, ठीक है। और huge का जो definition है, that could be somewhere around 0.75% on this indices। तो negatives में हमने देखा है कि सारे इसमें ये लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं सारे टाइम फ्रेम्स पे। सेकंड ये है कि इसने 22,800 तक को भी ब्रेक कर दिया है, और हमें और भी फॉल के ही मतलब कहाँ से भी आप देखो तो सिर्फ फॉल के ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये थर्ड नेगेटिविटी इज दिस। नाउ ऑन द पॉजिटिव साइड क्या क्या है, पॉजिटिव्स के लिए हमारे पास ये है कि हिस्टोरिकली हमने देखी है कि 4 मंथली में रेड कैंडल्स के बाद यूजुअली मार्केट एक छोटा सा रिवर्सल तो जरूर लेता है। ये अभी हम 5th रेड कैंडल पे आ गए हैं फॉर दिस मंथ, तो दिस कुड बी सम सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन। ये मैं खाली पॉजिटिव, सी माय आइडिया इज आई एम गोइंग टू शेयर बोथ द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स, यू विल हैव टू डिसाइड कि आपको मतलब कैसे प्ले करना है। मेरा my work is to keep the facts here, and what you can do, you can basically work because ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हमने चलो मान लिया कि ऐसे नीचे आ गया और हमने शॉर्ट किया एंड वहां से अगर घूम गया, तो इट शुड नॉट कम एज अ शॉकर, बिकॉज देन वी शुड बी नोइंग कि ऐसा हुआ है इन द पास्ट। दैट्स द रीजन वी आर इन वेरी वेरी कॉशियस व्हेन इट इज कमिंग। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ही आराम से शॉर्ट्स करके बैठे और मार्केट ने सडनली यू टर्न ले लिया तो वी गेट कॉट। एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम तो सोच रहे कि अब तो ये 4 रेड कैंडल हुआ है, अब तो ये डेफिनेटली टर्न होगा एंड मार्केट मेक्स फ्रेश लो, तो that also shouldn't come across as a very shocking incident for us. So that's the reason, just be prepared on both the sides. We exactly don't know exactly where market is going to take a turn or how it is going to react. Similar to this condition, मैं आपको यही condition के आसपास में लेकर जाती हूँ। आई विल ट्राई टू डू या अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिएगा ये कितने हैं 13 बार्स है, ठीक है। 13 डेज हो गए हैं और ये कंटिन्यूसली मतलब एक फॉल के बाद ये काइंड ऑफ साइडवेज हो रहा है। ऐसा एक भी कैंडल नहीं है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पर आपको, ठीक है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में हमको एक बार तो दिखा था, वी विल डिस्कस दैट व्हेन वी आर गोइंग टू कवर बैंक निफ्टी, बट इन केस ऑफ निफ्टी
from the past 13 days what we can see, there is a continuously sell off and some sort of a consolidation on the lower end. जब भी ऐसा होता है we expect that ये बहुत बार इसने नॉक किया है और ये सपोर्ट जो है वो वीक करके वो ब्रेक करता है, ठीक है. दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट. बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है, since everyone is waiting for that, the bigger guys would like to trap everyone and then take a reversal. मतलब ब्रेक करेंगे छोटे लेवल से, फिर बाद में रिवर्स हो सकता है. दिस इज द थर्ड पॉसिबिलिटी आई एम सेइंग. फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज इट विल गो डाउन. तो हमने ऐसा कोई एक डेली में देखा है, तो लेट्स फर्स्ट गो एंड चेक दैट आउट. सो आई एम गोइंग टू मार्च 2023. अगर यहाँ पर से आपको दिखेगा कि मार्केट ने क्या किया, अगर आप निफ्टी को यहाँ पर से देखते हो, ये जो लो है मार्केट ने ये लो को भी ब्रेक किया और उसके बाद देखिएगा थोड़े दिन सस्टेन किया, देन इट मेड अ कंसोलिडेशन विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज और उसके बाद इसने बहुत ही अच्छे से ऊपर गया. तो इसके लिए आई एम जस्ट सेइंग कि जस्ट बी अवेयर कि ऐसा कुछ भी होगा, देन वी नीड टू बी वेरी श्योर फ्रॉम आवर एंड. इधर आप देखोगे तो ये 15 डेज है, लगभग 15 डेज. एंड इन दिस केस मार्च मंथ, आई विल जस्ट शो यू. ये फेब्रवरी था, फेब्रवरी क्लोज्ड ईयर. फेब्रवरी के बाद मार्च अगर आप देखोगे तो बहुत ही नेगेटिव था. दिस वुड हैव बीन अ फोर्थ रेड मंथ इन अ रो. 2023 मार्च की बात कर रही हूँ. एंड ओनली ऑन द 31st ऑफ मार्च हम यहाँ पर गैप अप से खुले और एक अच्छी कैंडल क्लोज आई. उसके वजह से पूरा इसने जो मंथली कैंडल क्लोजिंग है वो चेंज किया. वी कैन गो एंड चेक दैट आउट. ये अच्छी खासी डाउन में थी और इसने एक डोजी कैंडल बना दिया. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये लास्ट वीक है एंड जस्ट बी वेरी वेरी कॉशियस. इतना इजी और क्लीन ट्रेड्स मतलब देना बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली व्हेन द बिग पीपल वांट टू ट्रैप यू आउट. ठीक है, तो जस्ट बी कॉशियस ऑन बोथ द साइड्स. जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, जो भी आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ले रहे हो या जो भी आप इंडिकेटर्स के बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो, जस्ट बी वेरी श्योर कि आप एसएल सिस्टम पे लगाओ और छोटे छोटे एसएल्स के साथ प्ले करो. अगेन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना ऐसे टाइम पे. सो दैट्स इट फॉर निफ्टी. नाउ मैं निफ्टी जो जैसा है वैसा ही सेंसेक्स के लिए आप रेप्लिकेट कर सकते हो. सो आई एम नॉट गोइंग टू कवर सेंसेक्स अलग से, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगर इफ यू हैव बीन फॉलोइंग अस ऑन ट्विटर, सो एक्स, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर द चार्ट्स ऑन एक्स एज वेल. तो वहां पर आपको सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी तीनों के चार्ट्स मिल जाएंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बैंक निफ्टी एक्सपायरी इज ऑन ट्यूसडे. व्हाई? बिकॉज वेडनेसडे को वी हैव हॉलीडे ऑन द ओकेजन ऑफ शिवरात्रि, तो इसकी एक्सपायरी होगी ट्यूसडे को. सो बैंक निफ्टी ने बहुत टाइम ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल में स्पेंड किया. उसने लास्ट मंथ इसने ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन दे दिया था, बट टुवर्ड्स द एंड इट ट्राई टू कम अप एंड मेरे लिए बहुत अच्छी कैंडल नहीं है, बट ऑफ कोर्स ये नीचे की तरफ ही कंटिन्यू कर रहे हैं. अगर आप करंटली देखते हो तो इट इज़ मोर ऑफ एन इनसाइड बार कैंडल ऑन द मंथली टाइम फ्रेम. बट येस, अगर हमको ये मंथ में ये रेक्टेंगल के नीचे ओपन और क्लोज मिल जाती है, दैट इज व्हेन वी कैन अंडरस्टैंड कि अब मोस्ट लाइकली नीचे का जर्नी है वो स्टार्ट करेगा इन केस ऑफ बैंक निफ्टी. अगेन बैंक निफ्टी इलेक्शन लो इज समवेयर अराउंड 46,000. बैंक निफ्टी, आई विल नॉट से बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर दैन निफ्टी. आई वुड जस्ट से कि निफ्टी इज मच वीकर दैन बैंक निफ्टी. ओके, एंड वी विल अंडरस्टैंड वाई दैट इज सो. तो अगर आप देखते हो बैंक निफ्टी ने ये जनवरी के मंथ में ये लो बना दिया था और यहाँ पर करंटली इट इज हायर लो पे है अभी के लिए, बट लोअर हाइज ही है. तो इसके लिए एज सच इसके लिए मैंने बोला कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट आई वुड डेफिनेटली से निफ्टी इज मच वीकर देन बैंक निफ्टी. तो लेट्स अंडरस्टैंड ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. सो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पर देखिएगा काफी बार सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने ये ब्रेक किया और जैसे ही इस सपोर्ट को ब्रेक किया, द नेक्स्ट टाइम व्हेन इट ट्राइड टू टेस्ट हियर अगेन इट टुक अ रेजिस्टेंस एंड नाउ इट इज कमिंग डाउन और इट्स ऑन अ पॉज मोड ऑन द वीकली टाइम फ्रेम जस्ट लाइक निफ्टी. तो आफ्टर अ ह्यूज सेलिंग राउंड देयर इज अ पॉज जस्ट लाइक निफ्टी. ये हमारी इलेक्शन डे की लो है 46,000. लेट्स गो क्विकली ऑन द डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पर एक W डेफिनेटली दिख रही थी और W की अच्छी खासी ब्रेकआउट भी हुई थी. देन देयर आफ्टर नो फॉलो थ्रू, स्ट्रेट अवे केम डाउन एंड अब ये यहाँ पर हवर कर रहा है जहाँ पर ये 48,700 को मेंटेन कर रहा है. उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है. बट वन वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड yesterday, it failed to close above 49,000. See, again 20 points away from 49,000, just like Nifty when it is 5 points away from 5 or 4.1 points away from 22,800 और यहाँ पर almost 20 points away. ठीक है, तो दैट इज डेफिनेटली नेगेटिव. और यहाँ पर भी देखिएगा ये भी बहुत बार टेस्ट हो चुका है. तो इसके लिए अगला लेवल जो है वो स्ट्रेट अवे यही लेवल बनता है जो कि जनवरी 27 का जो लो है ये वाला.
ठीक है, द लो इज समवेयर अराउंड 47,800 850, ठीक है। तो अभी हमारे लिए यही दिख रहा है, डेली में अगर आप देखते हो तो हमारे लिए 49,600 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था और 48,700 अब तक सपोर्ट एक्ट कर रहा है। लुकिंग एट द गैप डाउन, मतलब ये गैप डाउन के साथ ही शायद से 48,700 ब्रेक कर सकता है। अगेन ऑन द आर्ली टाइम फ्रेम जस्ट लाइक निफ्टी वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा दैट इज ओनली देन वी आर गोइंग टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक पॉजिटिव काइंड ऑफ ट्रेड या रिवर्सल्स के लिए प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ पर ऐसे कुछ मिल नहीं रहा है, या तो फिर कोई एक्चुअली सपोर्ट्स पे कोई अच्छा डब्ल्यू वगैरह मिले तो आप प्ले कर सकते हो। जस्ट लाइक निफ्टी वी वर ऑल्सो फिगरिंग आउट दिस पर्टिकुलर एक अपमूव चैनल, राइजिंग चैनल इन बैंक निफ्टी, and Bank Nifty gave a breakdown of this rising channel on the third candle, and thereafter it remained more or less volatile for the entire day. Now for us, these are the immediate supports and the resistance. So S4 is exactly the lows जो हमने January 27 को टेस्ट की थी। तो हम इसके आसपास आई विल जस्ट राइट एट 4750, ओके, और 47,900 व्हाटएवर। उसके पहले अगर छोटे मोटे सपोर्ट्स डेफिनेटली यहाँ पर है, और ये एक गैप छोड़ के गया था, तो ये गैप के हिसाब से हमने यहाँ पर एक सपोर्ट ढूंढा है 48,000 के आसपास, 48,100 के आसपास, ठीक है। तो अब ये चैनल का जो फुल टारगेट है हमने बस मतलब उसको रखा है। सी दिस इज नॉट, आई एम नॉट, वी आर नॉट एट ऑल सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, एंड वी आर नॉट इवन शेयरिंग एनी बाय और सेल रिकमेंडेशंस नीदर इन ऑन इंडाइसेस नॉर ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स। इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो हमने बोलना ही छोड़ दिया है, तो आई एम नॉट इवन कॉमेंटिंग ऑन एनीथिंग, any stocks या any commodity for that matter. So this is what whatever we are sharing is what we are looking at the price action. That's about it. इसके अलावा कुछ भी नहीं है। So please don't take any trades basis what we are sharing here, बिकॉज हम सिर्फ हमारे पर्सपेक्टिव बता रही है। इसके लिए मैंने कहा कि अकॉर्डिंग मतलब इट्स माई ड्यूटी टू शेयर ऑल द 3 थिंग्स दैट आई हैव सीन। तो अकॉर्डिंग वॉट एवर सूट्स यू, या आपका जो भी आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर आपको कहते हैं उसके बेसिस पे आपने ट्रेड्स लेना चाहिए। दैट्स द रीज़न आई जस्ट सेड कि आई विल बी शेयरिंग ऑल 3 व्यू पॉइंट्स। सो इन दिस केस यहाँ पर दिख रहा है कि ये भी लोअर हाई लोअर लो। ऑफ कोर्स जैसे एक दिन इसने बहुत ही अच्छा शानदार मूवमेंट दी थी बैंक निफ्टी ने, एंड इट ऑल्सो क्लोज एट डेज हाई 49,600 पे, बट उसके बाद वी फेल टू सी एनी सॉर्ट ऑफ फॉलो थ्रू इन केस ऑफ बैंक निफ्टी, एंड राइट नाउ इट क्लोज्ड बिलो 49,000. So these are the supports and these are the resistances. Again, just like Nifty, I would want to wait for 2 15-minute candles का high या low break करे, and उसके बाद ही I will see what needs to be done. So that's about it for Nifty and Bank Nifty. So अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, and if you think you have learned a new perspective in either of the indices, especially in Nifty where I talked about especially in case of Nifty where I talked about 3 possibilities. One is the up move, the second could be in fact up move के बारे में हमने ज़्यादा बात ही नहीं किया because दिख ही नहीं रहा था कहीं से भी कि up move की कोई ट्रेड बनती है, बट होने के लिए कुछ भी हो सकता है. इट्स मार्केट and it always remains unpredictable. The second one is basically down move, given the lower high lower low kind of a price action formation across all time frames, and the third one is basically a trap scenario where we might see a break of the current lows, and then from nowhere it might take a U-turn. So that also might be possible. So there is no certainty on how things are gonna go, but this is what I can clearly see. If you haven't understood the Nifty part of it, you can go, you can rewind this particular video और आप फिर से वो particular चीज़ों को वापस देखिएगा. So then और आप खुद से भी जाके वो dates को match करके देखिएगा कि what has happened in 2023 and so forth. So that's about it from our end. If you have liked and learned something new out of it, so please do hit the like button, and also do comment ki what else can we do given this kind of a regulation where we can't speak more about individual stocks or anything of that sort. So just share some ideas, because 3 months पहले की अगर मैं मतलब बताना कोई sense नहीं बनता according to me. So just let us know, and as always just trade very safely, and this
is going to be the last week for the month of February. So quantity, position sizing, आपके risk management, please keep it on. Sorry, मैंने अभी community के post देखे, so I just I thought of taking few questions. यहाँ पर लिखा है, thanks Aditya sir for the great view. Thank you very much. And then all of us want daily videos. Daily videos का problem यही है, we are still not clear as to SEBI के क्या regulations है and all of those things. And plus we are not getting so much of traction on the YouTube. तो अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, दैट इज़ ओनली व्हेन वी आर गोइंग टू रिकंसिडर टू स्टार्ट अ डेली एनालिसिस. दिग्विजय सर ने पूछा है कि अबाउट गोल्ड आई कांट बी शेयरिंग. द रीजन आई सेड कि जस्ट हेल्प अस आउट विद योर सजेशंस एज टू व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन इंक्लूड given the current SEBI regulations. Keep sharing during the week as well. That we are definitely going to do once we increase some traction on our channel. GSEC detail video is pending. Yes, indeed. ठीक है, ये हम कंसिडर कर सकते हैं इसको कवर करने के लिए. ठीक है, 4 नंबर कैंडल्स. यस दैट इज व्हाट एज पर हमने जो हिस्टोरिकली निफ्टी के एनालिसिस की उसके हिसाब से. यस, थैंक यू पीके सर. यस, दिस इज 100% राइट. इसके लिए हमने आज तो कोई इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में बताया भी नहीं, ना कमोडिटी के बारे में जो कि गोल्ड है. यस, दैट्स अबाउट इट गाइस. सी यू सून. प्लीज पोस्ट इट ऑन द कमेंट सेक्शन कि हम और क्या कर सकते हैं गिवन दिस न्यू गाइडलाइंस. सी यू ऑल. बाय बाय. टेक केयर.